یہ اس کی روز کی روٹین تھی۔ روٹین یہ تھی کہ اس کو بیوی کہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کو گھر سے نکالے، یہ ساری رات کھانستا ہے اور ہمارا سکون ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بہرحال تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنے باپ کو 2 جوڑے کپڑوں کے دیے اور ایک ڈبل روٹی دی، باپ سے معذرت کی اور باپ کو گھر سے نکال دیا۔ باپ اولڈ ہوم کی طرف چل پڑا۔ رستے میں اسے ایک کتا ملا جسے محسوس ہوا کہ کتا بھوکا ہے۔ اس نے وہ ڈبل روٹی کتے کے سامنے ڈال دی اور خود اولڈ ہوم چلا گیا، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ آرزو موجود تھی کہ اس کا بیٹا پچھتائے گا اور اس کو یاد کرے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت یاد کرتا اور اس کے دل میں ہر وقت کھٹکا رہتا کہ اس کا بیٹا اس کو ملنے آئے گا۔ بہرحال اسی ادھیڑ بن میں 4 دن گزر گئے۔ 5ویں دن اٹینڈنٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جی آپ کا ملاقاتی آیا ہے۔ بابا جی کا دل جو ہے وہ حلق میں آ جاتا ہے، خوشی سے وہ تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہے، لیکن برآمدے میں اس کا بیٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ کتا بیٹھا ہوتا ہے جس کو بابا جی نے ایک وقت کی ڈبل روٹی دی تھی۔ اٹینڈنٹ کہتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس بندے تھے ان سب کو ملوایا، لیکن یہ جو فیلنگ کتے کی ہیں کسی کے ساتھ نہیں آئی، کیونکہ جو ہی بابا جی سامنے آئے تھے تو کتا اچھل کر اور بھاگ کر ان کے پاس آ کر ان کی جو پیر تھے ان کو چاٹنے لگا تھا۔ بابا جی سوچنے لگے کہ میں نے تو اس کو ایک وقت کی روٹی کھلائی تھی، ایک وقت کی روٹی دی تھی، اور یہ اولڈ ہوم تک اس نے میرا پیچھا کیا اور پھر یہاں میری ملاقات کرنے کے لیے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے جو آپ کی محبتوں کا مکروز ہے، ممنون ہے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویری گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 جولائی 2026 آج تاریخ ہے اور دن ہے بدھ کا۔ اس وقت جب میں پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں تو پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ شام کے 5:15 بج رہے ہیں۔ کچھ آپ کے سامنے سیاسی خبریں رکھنی ہیں، ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ ویلاگ رکھنا ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو ٹک ٹاک کا لنک ہے وہ پن ہے کومنٹس میں، پہلا کومنٹ وہ ٹک ٹاک ہے، اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے۔ ڈسکرپشن میں بھی اس کا جو ہے وہ لنک موجود ہے، تو جتنے بھی بندے ہیں اس لنک کو کھولیں لازمی اور اس کو فالو کریں۔ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو 1 منٹ یا 1 منٹ سے کم کے بڑے اچھے اچھے ٹوٹے ملیں گے۔ ٹوٹے آج ہمارے مدعے کیا ہے؟ ہمارے مدعے یہ ہیں کہ گو عاصم گو، اور کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں 17,139 ارب، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کون لوگ لائے گئے ہم پہ مسلط کیے گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک گورنر وہ واپس آتے ہیں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد۔ حضرت عمر کی روٹیشن پالیسی تھی، 2 سال یا 3 سال سے زیادہ کوئی گورنر جو ہے وہ کسی شہر میں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک گورنر جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا وہ آئے تو حضرت عمر نے ان کا استقبال کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں پہ بھی چیزیں لدی ہوئی ہیں، گھوڑوں پہ بھی اور گدھوں پہ بھی۔ عمر بن خطاب نے پوچھا نام لے کے صحابی کا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ کاروبار کیا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہیں حکومت کے لیے بھیجا گیا تھا، لوگوں کے خیال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تمہیں کاروبار کے لیے بھیجا گیا تھا۔ واٹ از دس نان سینس؟ اور کتاب میں لکھا ہے کہ تمام سامان جو ہے وہ بحق سرکار
ضبط کر لیا گیا۔ یہ 17,139 ارب یہ مرہون منت ہیں جنرل عاصم منیر کے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گو عاصم گو، آپ نے لازمی لکھنا ہے کمنٹس میں۔ جنرل کی نحوست، یعنی جب آپ کی نیت ہی خراب ہو، من حرام تے حجتاں ڈھیر، جب آپ کی نیت ہی خراب ہو، آپ سالس بنیں یا آپ کوئی صلح کروائیں لیکن اس میں آپ کا اپنا مفاد ہو کہ آپ کا اپنا اقتدار قائم رہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے معاہدہ ختم کر دیا ہے، جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور جو تیل کی قیمتیں ہیں انہوں نے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی بری خبر ہے۔ اس کے بعد ہم جو بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے 390 ارب کا بندہ، یہ کون ہے؟ اور اس کے مقابلے میں 2 کے بندے، یہ کون ہے؟ یہ سٹوری آج آپ کو سناؤں گا۔ اور اس کے بعد میسی، ارجنٹائن، نواز شریف اور پاکستانی الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ، آج ساری کہانی کھول دی ہے اسرائیل نے۔ اسرائیل کا جو یونان میں سفارت خانہ ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ لیون میسی وہ اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ اب میرا خیال ہے ساری بات آپ سمجھ جائیں گے کہ رات کو کیا ہوا مصر کے ساتھ۔ اٹ واز انفیئر، میں نے صبح والے ویلاگ میں بھی کہا کہ میسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نواز شریف بنایا، اور ریفری نے اور جتنی بھی فیفا کی انتظامیہ تھی وہ پاکستانی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بن گئی، اور مصر سے ایک یقینی فتح جو ہے وہ چھین لی گئی۔ کچھ پاکستان کی خبریں ڈسکس کرتے ہیں۔ عزیز اللہ خان ہے، بہت سینئر جو ہے وہ صحافی ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں وہ ہالینڈ اور وینزویلا کی لڑکیوں کے ساتھ وقوع ہوا، گینگ ریپ ہوا اور جو کچھ ہوا، اس گھر پہ رضا ڈار نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کا کرایہ بھی نہیں دے رہا۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے الباکستان۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں، اور اس گھر پہ جو ہے نا وہ قبضہ ہے، اور وہ جو سبدی ماں ہے وہ پورے پنجاب کو اور پورے جو ہے نا وہ پاکستان کو وہ ٹھیک کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ عزیز اللہ خان رپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 14,25,00,000 کرپٹو میں یہ رضا ڈار صاحب ڈالتے ہیں۔ کتنا؟ 14,25,00,000 کہاں سے آیا؟ یہ کیا کاروبار کرتا ہے؟ انڈیا کی ایک فلم ہے ہیرا پھیری، بڑی زبردست فلم ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ بابو بھیا، پرکاش راؤ میرا خیال ہے بہت زبردست اداکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ جو ہے نا وہ قرضہ لے کے جو ہے نا تو وہ مر گیا، مجھ پہ قرضہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ ایک دن میں سب قرض داروں کو قرضہ دے کے اور گیراج کے باہر، جو اس کا گیراج ہوتا ہے، گیراج کے باہر وہ دارو پیوں کہ آج میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ ہیرا پھیری کا سین تھا۔ میری جو خواہش ہے نا کہ مجھ پہ جو قرضہ ہے وہ قرضہ میں اتار کے نا اور اپنے گھر سے باہر بیٹھ کے گولڈ لیف وہ سلگاؤں اور پھر لمبے لمبے سانس لوں کہ آج مجھ پہ کوئی قرضہ نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں بن پڑ رہا۔ 14,25,00,000 اس نے کرپٹو میں ڈالا۔ اس سے پہلے وہ جو بڑا لانتی ہے علی ڈار، وہ دبئی میں کروڑوں روپے ڈبو کے آیا ہے، وہ تو ڈالرز میں ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہی ہیں پاکستان کے پیسے ہیں۔ اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں، ان کے دادا کی سائیکلوں کی دکان تھی اور یہ اڑا رہے ہیں، ایزی کم ایزی گو، وہی کام کر رہے ہیں۔ اب اگر ان پیسوں کا ذکر ہوتا ہے پھر منی ٹریل آئے گی کہ یہ کس کے تھے، کہاں سے لیے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ پناما بن گیا اور ہم پہ جو ہے نا وہ، ابھی میں نے آپ کو حضرت عمر کا بتایا کہ تمہیں حکومت کرنے بھیجا تھا یا کاروبار کرنے بھیجا تھا۔ پھر ادھر سے یہ مظلوم بن جاتے ہیں، وہ جی نمازی ہیں
वो जी परहेजगार हैं, वो जी तहज्जुदें पढ़ते हैं। यानी आप अंदाजा करें गैंग रेप का यानी इनके जो हमायती हैं वो दिफा कर रहे हैं। हमने कल वाला वीलॉग देख रहे, सुहेल आफरीदी पे लानतें डाली। ये इमरान खान की तरबियत है कि आप लोग क्यों ब्लू पासपोर्ट ले रहे हैं। आपको याद होगा जो मुझे मुस्तकिल सुनते हैं कि इमरान तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, आप क्यों कर रहे हैं। इनके हमायती वो गैंग रेप का दिफा कर रहे हैं। साफी या सियासतदान या इनके पालतू गुलाम मालशिए, इनके पालशिए, वो उसका दिफा कर रहे हैं कि लड़कियां खराब थी और ये लड़कियां इसी तरह होती हैं बाहर की। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, तो हम जो ही गोरी के बारे में सोचते हैं, जो गोरी को देखते हैं, तो आपके ज़हन में क्या आता है? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि सारे अंग्रेज वो बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं, न इनकी कोई माँ होती है, न इनका कोई बाप। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा। वो उसको डिफेंस कर रहे हैं, हम सुहेल आफरीदी पर लानतें डाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने वजाहत भी कर दी है कि अप्रैल में बिल पेश हुआ था और हम नहीं करने जा रहे। ये फर्क है। यानी इमरान के जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे सुहेल आफरीदी की बैंड बजा दी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये जो है वो 14 जो है ना वो करोड़ और 25 लाख ये लोग इनका दिफा कर रहे हैं। कल जो मिस्र के हेड कोच थे, इनको इजराइल का परचम दिखाया गया, वीडियो बड़ी वायरल है। और जो हेड कोच थे मिस्र के, उन्होंने उस परचम की तरफ देखकर थूका 2-3 दफा। हालांकि मिस्र वो पहला मुल्क है इस्लामी, अनवर सादात, जिसने फिर कीमत भी अदा की। कैंप डेविड मुआहदा हुआ था और उसमें इजराइल को तस्लीम किया था। बाद में फौज ने अनवर सादात को मार दिया था और अनवर सादात कहते थे कि मैं कत्ल हो जाऊंगा। बहरहाल अभी तक नफरत मौजूद है, होनी भी चाहिए। मिस्री हेड कोच ने उनका परचम देखकर उसकी तरफ थूका है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि जॉर्जिया मेलोनी, आप जानते हैं कि बड़ी खुशशक्ल वजीर आजम है इटली की। इन्होंने कहा है कि इजराइल ने बार बार रेड लाइंस को अबूर किया है, नस्ल कुशी की है, और मैं सिफारिश करूंगी कि यूरोप इजराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाए। आजकल इजलास हो रहा है, बहुत बड़ा इजलास हो रहा है नेटो का, और ये इजलास हो रहा है तुर्की में। वहां पे तमाम जो नेटो के सरबराहान हैं तकरीबन वहां पे मौजूद हैं। तो वहां पर उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने इजराइल को जो है वो कंडेम किया है कि जी ये रेड लाइंस बार बार अबूर करता है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है 2027 में वादा किया गया है कि सूदी निजाम खत्म कर दिया जाएगा। सारा झूठ है। ये फजल रहमान ने चूरन बेचा कि खत्म कर दिया जाएगा। इस दफा जो सूद के लिए रखा गया है पैसा बजट में, वो रखा गया है 8,000 अरब। 8,000 अरब जो है वो सूद की अदायगी के लिए रखा गया है। और 2027 में ये जो रकम होगी, ये रकम तकरीबन 8 ट्रिलियन होगी रुपए। 8 ट्रिलियन ये रकम हमने अदा करनी होगी। और वादा ये किया गया कि 2027 में पाकिस्तान से सूद खत्म कर दिया जाएगा। मुकम्मल झूठ है, हो ही नहीं सकता। बाकी सारे काम हो रहे हैं तो सूद भी होता रहेगा। ये जिस तरह ये चूरन बेचते हैं तो ये चूरन जो है वो बिकेगा नहीं। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि दुबई दुनिया का 14वां महंगा तरीन शहर करार पाया है। 14वां। लेकिन इससे ऊपर जो लिस्ट है वो लिस्ट है जी, नंबर 1 है सिंगापुर। आप जानते हैं ताकत के लिहाज से सबसे ताकतवर पासपोर्ट है सिंगापुर का। उसके बाद ज्यूरिख जर्मनी, उसके बाद है जी हांगकांग, और हांगकांग के बाद है सिडनी। ये दुनिया के महंगे तरीन शहर हैं। अगर आपको यहां पे जाना हो तो आपने ख्याल करना है। लेकिन दुबई में जो ईरान की वो हुई है क्लैश हुई है, तो दुबई 7 दर्जे नीचे गिर गया है। 7 दर्जे, यानी पहले 7वें नंबर पे था। अब दुबई को कुछ हालात की जो है ना वो हुई है, यानी समझ आई है कि मामलात खराब हैं, तो उन्होंने डाउन किया है अपने आप को
اور वो 14वें नंबर पे आ गए हैं। जो हम पहला मुद्दा डिस्कस करेंगे, हमने सुबह भी डिस्कस किया, क्योंकि एक बैन अल-अक़वामी जो खेल है और लोगों के जज्बात हैं। फिर जो मिस्र की टीम थी बहुत अच्छा खेली, सलाह और दूसरे जो उनके खिलाड़ी थे बहुत अच्छा खेले, लेकिन ना मेसी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। मेसी वैसे भी बदतमीज आदमी है, मगरूर आदमी है। आपको याद होगा, मेरी उम्र के बंदों को याद होगा कि मैराडोना ने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने हैंडबॉल करके गोल कर दिया था और वर्ल्ड कप जीत लिया था, और बाद में उसको कहा गया गॉड्स हैंड, ये गॉड्स हैंड था। यही काम मेसी ने किया। मेसी और अर्जेंटीना ने, बड़ी टीम थी, बड़े खिलाड़ी थे, उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था। मुकम्मल तौर पे जो रेफरी था, अब देखे ना कि वो स्टाफ के एक बंदे को रेड कार्ड दिखा देता है, टोटल 4 येलो कार्ड दिखाता है रेफरी मिस्रियों को। और इसके अलावा जो अर्जेंटीना था, उन्होंने बिल्कुल नवाज शरीफ जो लास्टिक की शलवार पहन के डॉक्टर जास्मिन राशिद से 50,000 की लीड से हार के वो बड़ा एमएनए बना फिरता है, तनख्वाह भी ले रहा है। यानी ये इस तरह है, वेरी सॉरी टू से मिसाल देने की, ये इस तरह है कि जिस तरह आप अपनी मां की, आप अपनी बहन की, आप अपनी बेटी की कमाई खाएं, ये इस तरह है। वो कमाई नहीं जो जायज और मेहनत वाली होती है, नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप हार गए हैं, आप हार गए हैं, आपको लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो आप कौम के टैक्स क्यों ले रहे हैं, रियायतें क्यों ले रहे हैं, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो नवाज शरीफ है, क्योंकि टोटल 18 सीटें बनती हैं, 18, और सीटें उन्होंने ली हुई हैं 150, वो बाकी कहां से आई, बाकी। और यहां पे शिर्क किया आसिम मुनीर ने, कुफ्र किया आसिम मुनीर ने, और हलफ तोड़ा आसिम मुनीर ने। ये तो मां बहन और बेटियों की कमाई खा रहे हैं। चलो वो तो एक फुटबॉल है ना, हम उनको रिलेट कर रहे हैं कि अर्जेंटीना और मेसी ने सिकंदर सुल्तान राजा का भाई, आईजी रेलवे पुलिस, सिकंदर सुल्तान राजा की बीवी, सारे सेट हैं, सारे बड़ी सीटों पे हैं, मां बहन और बेटियों की कमाई खा रहे हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। ये लोग मिलकर, सारे मिलकर, ये कौम के खैर खा नहीं है, ये पाकिस्तान के खैर खा नहीं है कतई तौर पे। बहरहाल मेसी ने और अर्जेंटीना ने बिल्कुल नवाज शरीफ और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नवाज शरीफ को कहा गया था कि हम हार गए हैं, ये सबूत मौजूद हैं, 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कहा गया हम हार गए हैं। ये साद रफीक ने भी कहा था कि हम हार गए हैं, ठीक है अपोजिशन करें। इमरान जीत के, उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जो है ना कब्र अंगारों से भरूंगा और बकौल असद तूर लास्टिक की शलवार पहनूंगा, एक हाथ माल पे और एक हाथ शलवार पे, उधर छोड़ता है तो शलवार गिरती है, उधर छोड़ता है तो माल जाता है। बहरहाल जी, ये अर्जेंटीना और मेसी ने नवाज शरीफ और इलेक्शन कमीशन का जो है ना वो किया है, मुजाहरा किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब उसके मुकाबले में कितना बड़ा बंदा है, एक दौर का खात्मा हो गया। कितनी वर्थ है पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की? 390 अरब उसकी वर्थ है। 2 उसके पास जेट्स हैं, प्राइवेट जेट्स, एक गल्फ स्ट्रीम भी है वो मुख्यमंत्री वाला, एक वो भी है, और फिर जो CR7 सीरीज है होटल्स की, उसने कमाल किया हुआ है, वो इसके हैं। और फिर जो 2 प्राइवेट जेट्स हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास, वो 3,000 पाउंड पर आवर पे किराए पे देता है। इसको कहते हैं कारोबार, इसको कहते हैं सलाहियत, इसको कहते हैं काबिलियत। एक बंदा, कितना वजन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आपने देखा होगा, वर्थ कितनी है? 390 अरब। यहां 2-2 टके के बंदे, 2-2 टके के, जिनकी टोटल औकात 2 टके है, चाहे वो तारड़ हो, चाहे वो राणा सनौल्ला हो, चाहे वो तुलाल चौधरी हो,
चाहे वो कादर पटेल हो, ठग, चोर, उचक्के, जेब कुतरे, मां बहन बेटी की भाड़ें खाने वाले, और उनके मुकाबले में ये बंदा क्रिस्टीना रोनाल्डो कितना प्यारा बंदा है हर लिहाज से। अभी क्या ऐलान किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाऊंगा, दुनिया का, और पूरी दुनिया आकर वहां पे फ्री इलाज करवाएगी। इसको टैलेंट कहते हैं, इसको मेहनत कहते हैं, इसको हलाल मनी, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, मेहनत से कमाई हुई, इसको पैसे कहते हैं। ये जेब कुतरे, ये 2-2 टके के गरीबों को ठगने वाले, आईपीपीस के मुआहदे करने वाले, गैस पे फिक्स चार्जेस लगाने वाले, चीनी पे ब्लैकमेल करने वाले, किसानों की गंदम लूटने वाले, ये गब्बर सिंह, ये 2-2 टके के हैं। उसके मुकाबले में वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है हर लिहाज से। 2026 में जो तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक 390 अरब उसकी वर्थ है। उसके पास गाड़ियों का एक पूरा फ्लीट है और वो गाड़ियां देखने वाली हैं। एक एक गाड़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। मैं चाहूंगा कि आप लाजमी देखें यूट्यूब पे गाड़ियां क्रिस्टीना रोनाल्डो की, फिर क्रिस्टीना रोनाल्डो की जायदादें देखें आप। एक तो पुर्तगाल लिस्बन में, इसके अलावा स्पेन में, इसके अलावा इंग्लैंड में, और इसके अलावा जो उसके अपार्टमेंट हैं रियाज में, सऊदीया में, वो अपार्टमेंट देखने वाले हैं रियाज में, क्योंकि अल नसर क्लब से वो खेल रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ 2 साल से वो रियाज में रह रहे हैं। और जितने पैसे उसको अल नसर वाले दे रहे हैं वो भी जरा आपने पढ़ने हैं कि वो कितने पैसे उसको दे रहे हैं। बहरहाल ये मुआवजा करना था कि एक ओरिजिनल अमीर आदमी, एक ओरिजिनल मेहनती आदमी और 2-2 टके के ठग जो यहां हम पर मुसल्लत हैं। हम इस दौरान अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि अभी हम बात कर रहे थे अमारात के हालात की। कनाडा ने एमओयू साइन कर रखे थे 70 अरब डॉलर्स के कि वो अमारात में, एमिरेट्स में सरमायाकारी करेगा। उसको कनाडा ने रोक लिया है। मामला फिर बिगड़ गए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जंग के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहती जब जंग होती है। तो अब ये बहुत बड़ा लॉस है जो अमारात को फेस करना होगा। उन्होंने इसमें जो है ना वो फिलहाल रोक दिए हैं। हम अगली खबर पे चलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और ये बड़ी अच्छी बात है। बात ये है कि अमेरिका में जो इजराइल की जो हमायत है वो तेजी से गिर रही है, और इजराइल वो हमायत अब अमेरिका में हासिल नहीं कर पा रहा जो किसी दौर में उसको हासिल थी। और ज्यादातर लोग, ये तमाम मामलात का जो जिम्मेदार है वो इजराइल को जो है वो समझते हैं। क्यों? जिस तरह मैंने बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने सफारतकारी की या अर्दली ने की, क्योंकि ये ट्रंप को खुश कर रहे थे। जिस तरह स्टीव विटकॉफ ट्रंप का नुमाइंदा था, जॉर्ज कुशनर जो उसका दामाद है वो ट्रंप का जो है ना नुमाइंदा था, इसी तरह अर्दली और जनरल ये दोनों ट्रंप के नुमाइंदे थे। ये ट्रंप को गर्म पानियों से निकालना चाहते थे, हॉट वाटर से, उसको तकलीफ से निकालना चाहते थे, उसको फेस सेविंग देना चाहते थे। कभी उसको नोबेल के लिए नामजद कर रहे थे, कभी उसे सलूट मार रहे थे, कभी उसके गजा पीस बोर्ड में शामिल हो रहे थे। लेकिन जंग फिर जो है वो शुरू हो गई है। मामला शुरू होता है आबनाए हुर्मुज से। आबनाए हुर्मुज में 4 या 5 जहाजों पे हमला होता है और वो आग पकड़ लेते हैं। हालांकि ईरान इसकी तरदीद करता है, लेकिन कतर में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं, दे आर सिक पीपल, ये बीमार हैं। क्योंकि जो ईरानी क़यादत है वो इस वक्त इराक में मौजूद है। मसूद पज़ेश्कियान इराक में, कालिबाफ इराक में है, इराकची इराक में है, क्योंकि वो सैयद अली खामेनी का जनाजा है। तो यहां पे ईरान पे जो है वो 80 मकामात पे तकरीबन 7 शहरों में आग बरसा दी जाती है, जिसमें जजीरा खार भी है, बंदर अब्बास भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो बंदरगाह है ईरान की वहां पे। और जो तस्वीर आ रही हैं वो काफी खौफनाक है,
क्योंकि लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, वो तकरीबात तो नहीं कह सकते, तजहीर तकफीन जो खामेनेई साहब की है, तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा आग बरसाई गई है और फुल फ्लेज जो जंग है वो शुरू हो गई है। और उसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने जो है वो अमेरिका के हमले को जायज करार दिया है। आप जानते हैं कि पहले जो अटैक्स हुए, जो एक महीना या तकरीबन 100 दिन वो जंग जारी रही, तो यूरोप बिल्कुल जो है ना वो दूर रहा, सारे मामलात से दूर रहा। लेकिन अब जो नेटो के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमले को जायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक हुआ है। बहरहाल जो गरीब ममालिक है, खासकर जो पाकिस्तान है, इन्होंने रातों रात तेल बढ़ा देना है। तेल की कीमतों को आग लग गई है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। गरीब का पहले जीना महाल है, मजीद जो है वो जीना महाल हो जाएगा। लेकिन इनकी सफारतकारी जो रंग लाई है वो लोगों ने देख लिया है कि इनकी कितनी सफारतकारी थी। जो कुछ भी हुआ वो कतर ने किया, कतरियों ने किया। इनकी लालच ये थी कि हम बड़े साहब के करीब, बड़े साहब की बगलें सूंघें, बड़े साहब की किस्म ऐस दुम चूसें और हमारा इक्तदार, हमें कोई कुछ न कहे। पाकिस्तान में जितने जुल्म करें, इमरान खान पे जितने जुल्म करें, जितने लोगों को, वो रेहान तारिक साहब वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो इस तरह जो है कि हम जो कुछ करें हमें जो है वो लाइसेंस हो। अब अमेरिका की अपनी क्या सूरत हाल है, ये अमेरिका की सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूं कि अमेरिका में जितनी आबादी है ना, उससे ज्यादा जो है वो हथियार हैं। अमेरिका की बात कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका में 20 लाख जो है वो कैदी हैं। कितने? 20 लाख। जरा मुलायजा करना है, 1,66,000 जो कैदी हैं वो कत्ल के हैं। 1,66,000। 1,72,000 जो कैदी हैं वो जिनसी ज्यादती के हैं। 1,72,000। 1,22,000 डकैती के हैं। ये सुपर ताकत है, ये हाईली क्वालिफाइड मुआशरा है। 1,39,000 ये मनशियात वाले हैं, पीना और बेचना। ये अमेरिका की अपनी सूरत हाल है। वो सिख पीपल कह रहा है ईरानियों को, वो ईरानियों को सिख पीपल कह रहा है, क्योंकि अब मामला खराब होता जा रहा है। अब यमन की जो फजाई हदूद की खिलाफवर्जी हुई है, इसके अलावा जो है ना कुवैत पे हमला किया है ईरान ने, बहरीन पे हमला किया है ईरान ने कहा है कि वो रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा और मामलात जो है वो खराब होंगे डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से। बहरहाल फिलहाल जो इजराइल की ख्वाहिश है वही पूरी होगी, वही प्रीवेल करेगी। मैंने आपको बताया ना कि मैसी के बारे में यूनान का सफारत खाना, जो इजराइल का सफारत खाना यूनान में, वो ट्वीट करता है कि इजराइल में पैदा हुआ था मैसी, लिहाजा अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में रखना जरूरी है, मैसी को वर्ल्ड कप में रखना जरूरी है। तो फिर बिन गुएर और जो है ना वो नेतन्याहू की यही मर्जी थी, जो आपके सामने हमला हो गया, जंग खत्म हो गई। अब जो आपके सामने मेन मुद्दा रखना है, ये जरा आपने मुलायजा करना है। मेन मुद्दा ये है कि 2 सालों में, यानी 2 सालों में, ये 2 साल यानी 25-26, ये क्योंकि ये जुलाई से माली साल शुरू होता है ना, तो ये आप जो है ना वो जुलाई साल 24 वाला फिर 25 वाला, इन 2 सालों में पैसा कितना लिया? अभी कह रहे हैं ना सूद का खात्मा, इन्होंने लिया है जी 17,139 अरब। 17,139 अरब 2 सालों में, 24 महीने। कोई मैथमेटिशियन इनको तकसीम कर दे 24 महीनों पे, क्योंकि जीशान साहब की रिपोर्ट है कि जर्मनी को 4 मर्सिडीज का ऑर्डर दिया गया है, जो बुलेट प्रूफ हो, जो मिसाइल प्रूफ हो, जो बम प्रूफ हो, और एक गाड़ी जो मर्सिडीज तैयार हुई है वो तैयार हुई है 25 करोड़ में, 25 करोड़ में, और 4 गाड़ियां, एक गाड़ी पहुंच गई है, एक गाड़ी पहुंच गई है। यार लोगों की ये हालत हो, लोग खुदकुशियां कर रहे हो, लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे ना हो, एक कमरे से निकले तो लाइट बुझाते हैं, दूसरे में जाए तो लाइट जलाते हैं, कैद आजम की तरह कि बिल आएगा और बिल कौन पे करेगा।
118 लेवी चल रही हो पेट्रोल पे, 118 लेवी चल रही हो और उधर ये हालत हो। कौन सा डैम बना है, कौन सी बंदरगाह बनी है, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? ये 117,139 अरब किधर गया? और ये मेहरबानी किसकी है? जनरल आसिम मुनीर की। बच्चा बच्चा इनके बारे में जानता था, और जनरल आसिम मुनीर से ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं था। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि पनामा में जो इकामे निकाले थे ना, इकामे जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, ये जनरल आसिम मुनीर ने निकाले थे। वो DGMI थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने इकामे निकाले थे कि नवाज शरीफ के पास इकामा है, एहसन इकबाल के पास इकामा है, ख्वाजा आसिफ के पास इकामा है, और इकामा लाइसेंस है जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग का। अब दुनिया का कोई वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क का इकामा लेता है? बताएं। जो मिनिस्टर हैं वो दूसरे मुल्क के काम, वो तो नाई, मोची, फिटर, फैब्रिकेटर वो लेते हैं काम में। आजकल मसला भी बना हुआ है, सऊदीया में काम बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। इन्होंने क्यों रखे हुए थे? मकसूद चपड़ासी दुबई में क्यों रहता था? फिर मकसूद चपड़ासी मर क्यों गया? वो डायरेक्टर कामरान क्यों मर गए, जिनके हवाले इमरान ने केस किया था टीटियों का, वो क्यों मर गए? ये अभी आपने रज़ादार देखा, ये किसकी मेहरबानी है? अब हम आसिम मुनीर की मेहरबानी है। आसिम मुनीर ने सौदा किया अपनी चीफी का। मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि जो पहली समरी आई ना, पहली समरी बाजवा के बाद चीफ, उसमें नाम ही नहीं था आसिम मुनीर का, नाम ही नहीं था। फिर समरी बात, क्योंकि सौदा तो हो चुका था, लंदन में खुफिया दौरे हो चुके थे। फिर वो समरी वापस भेजी गई, फिर उस समरी में नाम डाला गया, और इस नाम पे इतना इतराज था, हालांकि सीनियर तरीन जनरल थे, सीनियर तरीन। जनरल फैज घर चले गए, जनरल नुमान घर चले गए, जनरल अजहर महमूद घर, उन्होंने कहा हम नहीं करते, हालांकि सीनियर थे जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने इनके नीचे काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो तो ये होता है ना, कोई जूनियर आपका चीफ बन जाए तो सीनियर घर चले जाते हैं, शुरू से पाकिस्तान में है, लेकिन ये तो सीनियर थे। आप रिकॉर्ड निकाल लें, जनरल फैज से सीनियर थे, अजहर अब्बास से सीनियर थे, नुमान से सीनियर थे, फिर भी वो घर चले गए। क्या वजह थी? डिजर्व नहीं करते थे। और फिर जिस तरह एक मेजर जनरल, यानी 8 फरवरी को जब इनको हाथ पैर इनके फूल गए, टीवी इन्होंने देखा, नुमाइंदे ओरिजिनल रिजल्ट दे रहे थे, 180 सीटों भी थी, पीटीआई आगे, तो एक मेजर जनरल पहुंचा, आप आ रहा, उसने कहा जी मैं करता हूं बंदोबस्त। फिर इन्होंने लंडा बाजार लगा दिया, जिनको बच्चा बच्चा जानता है उनको ले आए, तो उन्होंने तो यही करना था, उनको यही काम आता है। यानी मैं हूं ना, मुझे मोहब्बत के सिवा कोई काम नहीं आता। इनको ठगी, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, बदमाशी, रेप, कत्ल, डकैतियां, झूठ, इसके अलावा इन्हें क्या आता है? सरदार को क्या आता है? नवाज शरीफ को क्या आता है? ये जो मुख्यमंत्री है सदर बुड्ढी, इसको क्या आता है सिवाय झूठ के? तो मरियम औरंगजेब को क्या आता है? या वो अजम बुखारी को क्या आता है? ये क्या है ये लोग? तो एक मुतालबा है कौम का कि गो आसिम गो। आपने पहले 3 साल पूरे किए धक्के से, फिर आपने अपनी मर्जी की एक्सटेंशन ली, फिर आप जो है ना वो मुसल्लत हो गए कौम पे, और सारा कुछ आप कर रहे हैं, सारा कुछ। जो नुकसान मुल्क का हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन चोरी हुए, पाकिस्तान के जो इलेक्शन चोरी हुए, जिमनी इलेक्शन जो चोरी हुए, वो सारे आपने कराए, आपकी पुष्ट बनाई। आप आज पीछे से हट जाएं, इनको लग पता जाए लोग इनके साथ क्या करते हैं। ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। और बकौल मौलाना साहब, वो बंदा फासिक है, फाजिर है, मुर्तद है, जो जोर पे, ताकत पे हुकूमत करे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स जिसके खौफ की वजह से लोग इज्जत करें। हम तो नहीं कर, मैं तो नहीं करता आसिम मुनीर की इज्जत, डर लगता है।
कि मारेंगे। ज़र्फ इतना है, ज़र्फ इतना है कि उसकी बहनों को नहीं मिलने देते। कल इन्होंने क्या किया पता है? बुशरा बीबी से पहले फैमिली की मुलाकात कराई है। दिलेरी चेक करें इनकी दिलेरी, ये पानी खुलवाएंगे। फैमिली की मुलाकात कराई है, जब फैमिली मिलकर बाहर आ गई है फिर बुशरा बीबी की इमरान से मुलाकात कराई है। कितना सोचते हैं ये शैतानी दिमागों वाले कि कोई बात उसकी फैमिली बाहर ना कर दे। कितना शैतानी दिमाग है इनका, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते। ये 17,139 अरब के बारे में खुद भी कर रहे हैं, उधर इतना सोचते हैं इमरान पे और पीटीआई पे, उसके गम में घुले जा रहे हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।